sorry. Good evening or afternoon, whatever it is. So आज की क्लास में हम कोल्ड वॉर के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारे पॉलिटिकल साइंस के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है. We will be covering that. Good evening, मोहिल. कोल्ड वॉर शुरू करेंगे. ठीक है. सो वेट अ मिनट. 5 मिनट में क्लास शुरू करते हैं अभी. कोल्ड वॉर एरा में जो कॉन्सेप्ट रह गया है हमारा सिक्योरिटी का, और एक दो कॉन्सेप्ट्स और रह गए हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे. राघव, आने वाली क्लासेस में कभी डाउट क्लियरिंग सेशन होता है, उसमें कवर करेंगे. ठीक है. या फिर हम सिक्योरिटी के स्टार्ट में अभी भी स्टार्ट कर सकते हैं, और देन ऐसा करते हैं, कंटिन्यू करते हैं. कोल्ड वॉर आगे पढ़ लेंगे, फिर एटलीस्ट लेसन्स का कंटिन्यूएशन रहे. ठीक है. सो कहाँ तक हमने पढ़ा था? यूएन के इंडिया के यूएन में की पीस कीपिंग एफर्ट्स हमने कवर कर लिए थे. पीस कीपिंग एफर्ट्स में अभी तक क्या पढ़ा था हमने कि पीस कीपिंग एफर्ट्स किस तरीके से इंडिया ने उसमें कंट्रीब्यूट किया है, क्या क्या चीज़ें हमने देखी कि इश्यूज क्या है, रिफॉर्म्स में क्या आना चाहिए. तो उस रिगार्डिंग मैंने आपको बताया था डिफरेंस. हमने डिफरेंस कवर किया था पीस कीपिंग का आरटीपी के साथ, विच इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट. तो आगे ये लिखना था हमको. एक्चुअली में मैंने एक्सप्लेन तो सभी कर दिया था, इसको लिखना बाकी था, राइट? तो लिखिए आरटीपी, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट, इज अ मिलिटरी operation. It is a military operation, and it comes close to CSO, which is collective security operation. एक्सप्लेन मैंने किया था कि जो आरटीपी है ये एक मिलिट्री ऑपरेशन है, काफ़ी क्लोज आता है कलेक्टिव सिक्योरिटी के. मतलब कलेक्टिव सिक्योरिटी में भी हमको कोई वो लेने की ज़रूरत नहीं होती, मतलब कंसेंट लेने की ज़रूरत नहीं होती कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टी से. सेम चीज़ यहाँ होती है. तो लिखिए it works without consent of parties on the basis of human right violations. I'm just coming.
ह्यूमन राइट्स वायलेशन, आगे लिखिए। यूएन चार्टर, यूएन चार्टर, यूएन चार्टर does not permit, UN Charter does not permit action action within states within states within states, comma, only between states, only between states, only between states. Right, next, changing, heading लिखिए अगली, changing trends in peacekeeping. Changing trends in peacekeeping. First, write peacekeeping. Peacekeeping is an evolving concept. Peacekeeping is an evolving concept. It is an evolving concept. Initially, peacekeeping was limited to it was limited to maintaining ceasefire, maintaining ceasefire between parties in conflict. Between parties in conflict. For example, United Nations Military Observer Group for India and Pakistan. Since Congo crisis, peacekeepers are also involved in civil wars. Civil wars. Over a period of time, peacekeeping has also involved peace building efforts. That is reconstruction and rehabilitation.
Peacekeeping missions are also becoming multidisciplinary. Peacekeeping missions are also becoming multidisciplinary. Now, members of civil society are also involved because because they have major role reconstruction in reconstruction. Now change of paragraph, right? Developed countries have proposed robust peacekeeping. Robust peacekeeping. Right, robust peacekeeping since attack against peacekeepers are increasing. Developed countries have proposed that peacekeepers should be allowed to keep offensive arms and to use force in situations other than self defense. Next, right? There is an objection to the idea that it will end the distinction and developed countries will send their forces in disguise
as peacekeepers. Next, India's position on reforms in peacekeeping. First point, consultation with troop contributing countries. First is that. Second, more funds and their timely release. Third, zero tolerance towards any sort of irresponsible behavior such as sexual violence, corruption, etc. by peacekeepers. नाउ इसके अलावा एक और क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है कि कलेक्टिव सिक्योरिटी ऑपरेशन का हिस्ट्री में कोई एग्जाम्पल, यूनाइटेड नेशन क्योंकि कलेक्टिव सिक्योरिटी के लिए काम करता है, तो क्या इसका कोई एग्जाम्पल प्रेजेंट है हिस्ट्री में? तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है. सो राइट दिस क्वेश्चन, विच इज द बेस्ट एग्जाम्पल, क्योंकि हम कलेक्टिव सिक्योरिटी पढ़ रहे हैं तो कलेक्टिव सिक्योरिटी पीस कीपिंग का डिफरेंस जानना बहुत ज़रूरी था, इसलिए हमने पीस कीपिंग पे थोड़ा ध्यान दिया आज. विच इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ CSO, that is collective security operation in the history of UN. एग्जाम्पल में लिखिए गल्फ वॉर 1 1989. फर्स्ट गल्फ वॉर 1989 की. व्हाट्स द डाउट विनय? गल्फ वॉर 1 हुई थी जब इराक ने इन्वेड किया था कुवैत को. So it has everything to do with United Nation reforms as well. अभी यूएन का टॉपिक आने वाला है, उसमें यूएन के रिफॉर्म्स की बात करेंगे तो फंडिंग की भी बात करेंगे, और उसी फंडिंग में हम पीस कीपिंग की भी फंडिंग की बात करेंगे. समझ आया ना? देखिए हमारे पास दो ऑप्शन हैं कि यूनाइटेड नेशन काम नहीं कर रहा है तो उसको अबॉलिश कर दीजिए,
और उसकी जगह पे एक नई बॉडी लाई जाए। लेकिन नई बॉडी लाने का मतलब है कि दोबारा से उसकी मैंडेट मीटिंग्स करो, स्ट्रक्चर बनाओ, चार्टर साइन करो, सारे जो लीडर्स हैं सब आए, इनकी मीटिंग होगी। आपको पता है काफ़ी पैसा लगता है इन सब चीज़ों में। तो यानी एक तो तरीका ये है कि दोबारा से शुरू करो, ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं, नई बॉडी बनाते हैं और उसमें वन कंट्री वन वोट रखते हैं, वीटो पावर रखते ही नहीं। ठीक है, वीटो पावर रखते ही नहीं। तो फिर उस सिचुएशन में क्या होगा कि अगर वीटो पावर नहीं रख रहे हैं तो चीज़ें काम करने लग जाती हैं। ठीक है, लेकिन उसमें बहुत सारा पैसा, गारंटी तो देखो उसमें भी नहीं है, लेकिन पैसा बहुत उसमें यूज़ होगा। दूसरा है हमारे पास ऑप्शन कि ये ना करके हम एक और चीज़ कर सकते हैं कि वी कैन रिफॉर्म जो अभी हमारे पास यूनाइटेड नेशन है, इतना ऑलरेडी पैसा उसमें लग चुका है, पूरी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सब कुछ बन चुका है, उसी को रिफॉर्म किया जाए, उसी में बेहतर चीज़ें लाई जाएं। ये किया जा सकता है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो जो सेकंड ऑप्शन है वही बेहतर माना जा रहा है इस टाइम पे। ठीक है, तो उस हिसाब से पहली बात तो जो यूनाइटेड नेशन पैसे को लेकर कितना स्ट्रगल कर रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑपरेशन में ही, उसमें ही अभी लाया जाएगा रिफॉर्म, जिसमें कंट्रीब्यूशन रहेगा इकोनॉमी का वो अलग रहेगा। इनफैक्ट बोला तो ये भी जा रहा है कि क्योंकि चाइना अब रिवाइज कर रहा है तो चाइना की कंट्रीब्यूशन काफ़ी रहेगी यूनाइटेड नेशन में उस हिसाब से। तो एक तो ये है। दूसरा है कि पीस कीपिंग ऑपरेशंस आजकल चैलेंजेस वगैरह तो हो ही चुके हैं। तो जिस भी कंट्री में पीस कीपिंग ऑपरेशन हो रहा है वहाँ पे वॉर टोन एरिया है, सब कुछ है, तो या तो वो दो कंट्रीज भी फंड कर सकती हैं, दिस इज़ अनदर वे। ठीक है, वो भी फंड कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा इंटरनेशनल पीस के लिए फंडिंग यहीं से आनी चाहिए, क्योंकि वो कंट्री भी मेंबर कंट्री होगी, तभी तो वहाँ पर उनकी कंसेंट लेकर के पीस कीपिंग ऑपरेशन रखा जाएगा। ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स, ये उसके रिफॉर्म से इंक्लूडेड है। क्योंकि देखो अभी सब कुछ खड्डे में है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, एवरीथिंग इज करेंटली नॉट वर्किंग गुड। हर किसी में रिफॉर्म्स की रिक्वायरमेंट है, चाहे वो WTO हो, चाहे IMF हो, चाहे यूनाइटेड नेशन हो, हर किसी चीज़ में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, कुछ ना कुछ चेंज लाने की तो ज़रूरत है ही। तो देखिए आगे, व्हेन इराक invaded Kuwait, this was the time this was the time when when United Nations Security Council could give effect to the resolution without use of veto by USSR by USSR. More than 30 countries, more than 30 countries participated in the United Nation operation under the leadership of USA.
The collective security operation. The collective security operation itself symbolized the end of Cold War. After this CSO, after this collective security operation, there has been no operation. There has been no operation which can be called as a collective security operation. लास्ट हेडिंग लिखिए इसी में ओवरऑल assessment of collective security. देखिए collective security continues to remain an utopian ideal, remain utopian idea, full stop, so long, so long countries will continue to give priority, so long countries will continue to give priority to their national interest, to their national interest. It would be difficult. It would be difficult to expect the operationalization of to expect the operationalization of collective security. Collective security. It means it means there will be there will be no end to arms race. There will be no end to arms race. लिख लिया आप लोगों ने? Actually, I'm not feeling well. So I'm going to end the session early today.
ठीक है, बाकी का 1 घंटा हम आगे एडजस्ट कर लेंगे। आई डोंट थिंक सो दैट आई कैन कंटिन्यू। ठीक है, सो यहाँ तक कलेक्टिव सिक्योरिटी हमारा फिनिश हो चुका है। सिक्योरिटी का टॉपिक बचा है, उसके बाद डेटरेंस बचेगा, न्यूक्लियर डेटरेंस, वो सब चीज़ें आगे कवर करेंगे। आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई हैव टू एंड द क्लास। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, रियली सॉरी फॉर दैट। पता नहीं, मेडिसिन लेने के बाद में बहुत ज़्यादा हो गया है। पहले तो फिर भी आई थिंक आई कुड हैव कंटिन्यूड, अभी हो नहीं रहा है। ठीक है, आगे रखे क्लास।